الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء. انہی پہاڑوں کے جلف میں ہماری ملاقات عقیدت مندوں کے ایک قافلے سے ہوئی جو جیے شاہ نورانی نور ہر بلا دور کے نعرے لگاتا دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر چلتا چلا جا رہا تھا. مقامی عقیدت مند صبح کی آذان کے بعد نورانی بابا کے مزار سے لاہوت کرنے کے لیے پیدل روانہ ہوتے ہیں. اور پرہیبت اور خطرناک پہاڑوں پر ایسے قدم جماتے چلے جاتے ہیں جیسے یہ بلند و بالا پہاڑ ان کے عزم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن عام زائرین کے لیے بل کھاتے بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل یہ راستہ بے حد خطرناک، کٹھن اور دشوار گزار ہے. پہاڑوں کی دشواریاں اور بلندیاں عبور کرتے ہوئے عقیدت مند پہاڑ کے اس کنارے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لوہے کی کپکپاتی سیڑھیوں پر چڑھ کر آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. ان سیڑھیوں سے اگر کسی کا پیر پھسل جائے تو اس کی زندگی سینکڑوں فٹ گہری کھائیوں کا نوالا بن جائے. لیکن ان لوہے کی سیڑھیوں پر چڑھنے والے عقیدت مند ایسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے معمول کا کوئی معمولی سفر طے کر رہے ہوں. 6 پہاڑوں کا طویل اور تھکن سے چور سفر طے کرنے کے بعد لاہوت لامکان کی چوٹی نظروں سامنے ابھرتی ہے جہاں پہاڑی چھجے پر سفیدی مائل پتھریلی جڑیں دکھائی دیتی ہیں. اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی دودھ کا پہاڑ ہوا کرتا تھا جو نورانی بابا نے اپنی کرامت سے بہایا تھا. مقامی افراد اس دودھ سے سیراب ہوتے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے اس دودھ کو بیچنا شروع کر دیا، اس لیے اس دودھ کے پہاڑ کو پتھر کا بنا دیا گیا. آج بھی زائرین اس پہاڑ کی سفید پتھریلی جڑیں توڑ کر تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بیماری وغیرہ میں اسے کھایا بھی جاتا ہے. ان زائرین کا دعویٰ ہے کہ ان پتھروں میں دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے. یہاں پھر سوالوں کا ایک ایسا سلسلہ بام ادراک پر رقص کرنے لگتا ہے کہ کیا کبھی اس پہاڑ سے دودھ کی ندیاں بہتی تھی یا کسی کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے اس پہاڑی چھجے کی رنگت سفیدی مائل ہو گئی ہے. دیکھیے جہاں تک پہاڑ کا تعلق ہے، پہاڑ میں آپ نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ جگہ بنی ہوئی ہے مستطیل نما، اس کے اندر لوگ گزرتے بھی ہیں. پھر یہ یہاں آپ نے اس کا ذکر کیا دودھ نما پہاڑ. بات یہ ہے کہ یہ دودھ نما پہاڑ اس کو کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں ایک پیور لائم سٹون ہے، چونے کا پتھر جس سے آپ کہتے ہیں، اور جو دودھیا کلر ہے اس کا اوریجنل کلر ہے، ایسا بالکل ملکی وائٹ جسے آپ کہتے ہیں کلر ہے. اور یہی نہیں، آپ کو پاکستان میں متعدد مقامات پر اس قسم کے پہاڑ ملیں گے جو دور سے لگے گا ایسا لگے گا کہ جیسے دودھ بکھرا ہوا ہے، کیونکہ اتنی وائٹنس ہے اس کے اندر. تو اسی قسم کی یہی بات ہے، دودھ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، البتہ ملکی وائٹ کلر آپ کہہ سکتے ہیں اس پہاڑ کا ہے، وہ اس کا اوریجنل کلر ہے، اس سے کوئی اور تعلق نہیں کسی کا. اسی طریقے سے جو پہاڑوں کے اندر آپ نے کہا کہ راستے ہو جاتے ہیں، تو یہ راستے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو پہاڑ جہاں بھی پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ کیمیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، پانی کا گزر ہوتی رہتی ہے. اور یہ لائم سٹون ہے کہ سارا کا سارا، یہ آتشی پہاڑ نہیں ہے یہاں پر، یہ اکثریت جو ہے لائم سٹون کی ہے. اور پانی جب اس کے اندر گزرتا ہے تو وہ کیمیکلی اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے. تو بعض چھوٹا غار بنتا ہے، بعض بڑے بنتے ہیں، بعض بہت بنتے ہیں، بعض ایسا لگتا ہے کہ ٹنل بن جاتے ہیں، بعض ایسا لگتا ہے کہ ٹنل اندر چل رہی ہے. تو یہ ساری کیمیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جو پہاڑ کے اندر اس قسم کے شیپ بنا دیتی ہے. اور بعض میں بتا دوں آپ کو، بعض لگتا ہے کہ کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی لگتا ہے بعض، اتنی اچھی کٹنگ اس کی ہو جاتی ہے، نیچرل کٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سب پہاڑ کے اندر ایک ویدرنگ پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں مختلف شکلیں بنتی ہیں. بعد میں وہ لوگ جو ہیں اس کو گڑھ لیتے ہیں، کسی بزرگ سے نسبت کر دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا، وغیرہ وغیرہ.
बुलंदियों का तवील सफर तय करने के बाद जब हमारे थके हारे कदम लाहौत लामकां के पहाड़ पर पहुंचे तो यहां एक और ही दुनिया हमारी मुंतजिर थी। यहां जमीन से सैकड़ों फीट बुलंदी पर मकामी अफराद ने कहीं अशियाए खुर्दोनोश सजाई हुई थी तो कहीं अगरबत्तियों, पत्थरों और मकामी जड़ी बूटियों के अंबार लगे हुए थे। कहीं जायरीन की जूतियों के ढेर रखे थे तो कहीं चाय की भाप उड़ रही थी। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर सजाया हुआ ये छोटा सा बाजार देखकर महसूस हो रहा था जैसे हम वाकई ज़मानो मकान से गुजरकर किसी लामकानी दुनिया की बुलंदियों पर पहुंच गए हों। इस मकाम पर जायरीन अपनी जूतियां उतारकर बुलंदी के एक और सफर की जानिब रवाना हो जाते हैं। इस बुलंदी पर पहुंचकर हमारी पहली मुलाकात एक सज्जादा नशीन काशिफ कादरी से हुई, जिसने कभी कराची की दरसगाहों से तालीम हासिल की थी, लेकिन अब वो शहर की भागती दौड़ती जिंदगी को छोड़कर पहाड़ों की बुलंदी पर अपने हुजरे में बैठा लाहौत के सफर पर आने वालों की पीठ पर लाहौती मोहरें सबत कर रहा है। मकामी अफराद और इस मलंग का कहना है कि ये वो मकाम है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अल्लाह की इबादत किया करते थे। इस बारे में जब हमारी काशिफ कादरी से बात हुई तो उन्होंने स्क्रीन पर ना आने का वादा लेकर हमें वो कुछ बताया जिसकी हमें तवक्को ना थी। ये अहाता जो है हरे रंग का, ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम की चिल्लागाह से मंसूब है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे एक जगह तामीर कर दी गई है। वो ये कहा जाता है कि यहाँ पे आका अलैहिस्सलाम की भी आमद होती थी, यहाँ पे फलां बुजुर्गान दिन की आमद होती थी, यहाँ फलां बुजुर्गान दिन की आमद होती थी। ऐसा है ना, रिवायात हैं ये सारी। देखिए, श्रीलंका से मुतल्लिक तो कुछ हकाइक कुतुब के अंदर मिलते भी हैं और तारीख के अंदर मिलते भी हैं। अहले इल्म का एक तबका उसकी तस्दीक भी करता है, लेकिन इस जगह के अलावा इस बारे में ये कहना तो ये सारी फर्जी बातें हैं और जाहिल लोगों ने लोगों को मुतासिर करने के लिए, अपना सौदा बेचने के लिए, अपने गोया कि अपनी मन मानी मुरादों को उनसे मनवाने के लिए और वहाँ पर एक गर्म करने के लिए इस किस्म की रिवायतें मजहबी खौल के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इस किस्म का कोई तारीखी हकाइक और तारीखी तनाजुर और तारीखी सबूत गोया कि किसी भी किताब के अंदर, यहाँ तक कि ज़ईफ़ बातों के अंदर भी गोया कि रकम नहीं किया गया है। मैं एज ए साइंटिस्ट कह नहीं सकता। अगेन अकीदे की बात है। अब कुरान में कहीं स्पेसिफिकली वाज़े नहीं है कि वो कौन सा मकाम था। अब यह है कि तारीख़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, कि आज से अब ये तो हज़ारों साल पहले की हिस्ट्री है, 40,000 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। तो ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई वो मकाम था कि नहीं। यहां से गुजरकर जायरीन उस मकाम तक आते हैं जहां रस्से और लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर एक छोटे से दहाने तक पहुंचा जाता है। इस दहाने के अंदर जो दुनिया है उसी को लाहौत कहा जाता है और जो इस दहाने से गुजरकर वापस सही सलामत आ जाता है उसे लाहौती कहा जाता है। ये दहाना पहली नजर में ऐसा महसूस होता है जैसे चिंगाड़ते वक्त शेर ने अपना मुंह खोल दिया हो। इस दहाने से अकीदतमंद एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां सदियों से ऐसे अनोखे मनाजिर सांस ले रहे हैं जो ना कभी देखने में आते हैं ना सुनने में। इस दहाने से एक रस्से को थामकर अंधेरी गार में उतरा जाता है। जैसे ही गार में कोई पहला कदम रखता है तो खौफ की झुरझरी सारे जिस्म में दौड़ जाती है और देखने वाले को सामने गहरी नोकदार खाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही आंखें अंधेरे से मानूस होती जाती हैं
तो जान में जान आती है। दरअसल यहां पानी खड़ा है और इस पानी पर पहाड़ की चोटी का अक्स दिखाई देता है। ये वो पहला खौफ है जिसका सामना लाहौत में उतरने वाले हर किरदार को होता है। गार में जायर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। पहाड़ की छत से रसते हुए पानी की वजह से यहां हर तरफ सेलन फैली हुई है। जरा सी बेएहतियाती भी किसी भी बड़े नुकसान का पेश खेमा बन सकती है। पानी को उबूर करके जिस मंजर ने हमारे कदमों को रोक दिया वो थी पत्थर की ऊंटनी। इस ऊंटनी के बारे में कहा जाता है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह इस ऊंटनी पर बैठकर हिजाज से एक सुरंग के जरिए इन पहाड़ों पर आया करते थे और अब ये ऊंटनी पत्थर की बन गई है। लेकिन यहां ये सवाल उभरता है कि क्या वाकई ये हकीकी ऊंटनी है या इसे पत्थर से तराश कर बनाया गया है। ये वो ऊंटनी है जिसको जब आप सरकार ने पर्दा फरमाया था और कहा था मेरे जिस्म मुबारक को इस ऊंटनी के ऊपर रख के छोड़ देना, ये वो ऊंटनी है जिसने इस जगह के ऊपर आके कायम किया था। ये सब खुद साख्ता कहानियां हैं, खुद साख्ता गोया के जाहिल मलंगों की तरफ से फैलाए हुए वो फजूल और गोया के गलत किस्से हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। शरीयत मुतहरा इसकी सख्त गोया के मजम्मत करती है और किसी तारीख के अंदर इसका सबूत नहीं है। रहा अहलुल्लाह अगर किसी सवारी पर बैठ जाए, किसी से मंसूब हो जाए तो उसकी बड़ी ताज़ीम और तकरीम होती है, जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाका का जिक्र कुरान के अंदर गोया के मौजूद है। इजिप्शियन ममीज भी एक ख़ास तरीके से प्रिजर्व करके हज़ारों साल वैसी की वैसी रहती थी। अगर तो ये अल्लाह ताला का कोई मौजज़ा है कि उस ऊँटनी को उन्होंने रखना है इस कंडीशन में कि जी आने वाली नस्लें उसको याद रखें कि ये ऊँटनी अली की थी, तो कह नहीं सकते। होता ये हमारे माशरे में कि बाज़ चीज़ें सिर्फ अकायद की बुनियाद पे होती है। देखें, अकीदे का ताल्लुक जज्बात से है और जज्बात में मंतक या लॉजिक नहीं होती। होना ही चाहिए कि जब आपका किसी चीज़ पे अकीदा हो उसके बाद तहकीक का एक अमल शुरू हो। तहकीक से अकीदा कन्वर्ट होता है यकीन में। यकीन वो मंजिल है जो जिस पे बेस्ड है दानाई पूरी की पूरी। तो हमें होना ये चाहिए कि हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, बड़े बड़े औलियाए कराम हैं, साइंसदान है हमारे पास, कम से कम ये तहकीक करें। और होता ये है कि शायद ये तहकीक करना मुश्किल ही है कि जो लोग इनकी हिफाजत पे मामूर हैं, इनका ख्याल रखते हैं, वो शायद तहकीक नहीं होने देते इस बात के ऊपर। क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई तो क्या बात है जी, बहुत बड़ा एक तोहफा है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। और अगर ये बात गलत साबित हुई तो इसमें कई लोगों के बिजनेस बंद हो सकते हैं। ऐसा होना कि हज़रत अली जो हैं वो, ये रिवायत तो मौजूद है कि दर्रा खैबर को उन्होंने उखाड़ा, लेकिन कहीं भी ये रिवायत समझ में नहीं आती कि वो ऊँटनी बाद में पत्थर की हो गई। और ये तो मेरा ख्याल है कि हज़रत अली के साथ इस वाक़े को जोड़ना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। पत्थर की ऊंटनी के पास गार के एक कोने में एक जगह है जिसे मां का पेट कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर अफराद इसके बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं जिसे ना तो तहरीर में लाया जा सकता है और ना ही जुबान से अदा किया जा सकता है। अलियाज़ु बिल्लाह, किसी मुसलमान के नसब पर, किसी इंसान के नसब पर तोहमत लगाना शरीयत मुतहरा ने इसकी इजाज़त कभी नहीं दी है जब तक कि वो सबूत वहाँ पर मुतहक्क़क़ ना हो जाए। और ये कहना कि जनाब जो है कि वो माँ का पेट है और वहाँ से हलाली और गैर हलाली का सबूत दिया जाता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और आप इस बात को भी याद रखिए कि जब दीनी रुख या दीनी रुख से किसी मसले को बयान किया जाता है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ये देखा जाता है, जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन का ये कौल नकल किया था कि इन्ना हादल इल्म दीन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, यानी इस्लामी लिबादे में अगर कोई बात पेश की जा रही है तो सबसे पहले ये देखो कि जिससे तुम दीन ले रहे हो वो खुद कौन है। तो किसी आलिम ने ये नहीं लिखा, न किसी आलिम ने बयान किया, ये मन गढ़ंत बातें जो जाहिल मलंगों ने, जो शरीयत मुतहरा पर अमल नहीं करते, शरीयत मुतहरा की तालीम से अपने आप को तसादुम करते हैं, तो गोया कि उन्होंने ये जिक्र किया है। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई हकीकत नहीं है।
यहां से थोड़ा आगे पहाड़ की चोटी से मीठा पानी टपक रहा है। जायरीन यहां से पानी जमा करके साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि कभी यहां से दूध टपका करता था। यहां आने वाले जायरीन इस अमर पर बेइंतहा हैरान होते हैं कि पहाड़ की चोटी से पानी कहां से आता है जो सदियों से आज तक मुसलसल टपक रहा है। देखिए, चश्मा जो है ना वो जमीन के अंदर से ही फूटता है और चश्मा वहां से फूटेगा जहां से उसको जगह मिलेगी। अब अगर पहाड़ है या कोई पहाड़ है, कोई जगह है, अब ये इसी जमीन के अंदर यहाँ कमरा है, अब पानी अगर यहाँ से आगे है नीचे, उस जगह से निकलेगा पानी कि जहाँ से निकलने का उसको रास्ता मिलेगा। तो अगर वो पहाड़ी बनी हुई है और उस पहाड़ी की नोक तक वो रास्ता बना हुआ है और पानी ने उबलना शुरू हो गया तो यकीनन पानी फिर वहीं से निकलेगा। अब रही बात कि पहले वो दूध था, तो मेरे ज़हन में फिर वही बात आ रही है, क्योंकि ये मिल्की वाइट लाइमस्टोन है और इसका जब सॉल्यूशन बनेगा, पानी गुजरेगा तो मिल्की वाइट कलर में होगा। लोग यकीनन उसको कयास करेंगे कि ये दूध है। देखने में ये गार बहुत ज्यादा कुशादा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इस गार की सेलन ज़दा भूल भुलैयों में कदम रखे जाते हैं तो कई और पेचीदा और दुश्वार रास्ते आंखों के सामने खुलते चले जाते हैं। इस तंग सी सुरंग से जायरीन इंतहाई दुश्वारी से गुजरकर ऊपर की जानिब बढ़ते हैं, जहां शाह नूरानी की चिलागाह है। यहां तक पहुंचते पहुंचते जायरीन कई खराशें अपने जिस्मों पर सजा लेते हैं। इस चिलागाह की बुलंदी पर पहुंचा जाए तो यहां मोमबत्तियों की रोशनी में एक जाए नमाज दिखाई देती है और उसके सामने चंदे की एक पेटी के साथ एक बॉक्स में कुरान मजीद रखा हुआ है। जब दूर दराज से आए हुए जायरीन यहां तक पहुंचते हैं तो अकीदत और तवाहुमात के एक अनोखे ही खेल का आगाज होता है। और बेशुमार इंसानों के सर इस चिलागाह के सामने झुक जाते हैं। यहां फिर तालिबे इदराक के दिलो दिमाग में सवालों के तूफान उठ जाते हैं। क्या खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और को सजदा करना जायज है? देखिए कि सजदा ताज़ीमी जायज़ तो रहा है, लेकिन अब इस उम्मत के अंदर मनसूख हुआ। क्या आपने नहीं देखा कि कुरान मजीद ने हज़रत आदम के बारे में जिक्र किया था कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, कि अल्लाह ने खुद हुक्म दिया फरिश्तों के कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सहाबा इकराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुज़ूर, हमने कैसर और किसरा के लोगों को देखा है कि वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं, तो या रसूलल्लाह क्या हम आपको सजदा ताज़ीमी कर सकते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा ताज़ीमी से मना फरमाया और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। सजदा ताबुदी अगर करेगा तो वो शिरक है और सजदा ताज़ीमी करेगा तो वो हराम है। हज़रत अली से किसी ने पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, तो खाली के कायनात के अलावा किसी और को सजदा जायज़ इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा है ही नहीं इस कायनात में कि जो इबादत के लायक हो। तो जो इबादत के लायक नहीं है उसे सजदा नहीं हो सकता। यहां बहुत सी जगहों को बुजुर्गों की चिलागाहों और मंच से मंसूब किया गया है। शाह लतीफ भिटाई की चिलागाह भी है और शहबाज कलंदर की भी चिलागाह है। ये भी कहा जाता है कि दाता गंज बख्श, ख्वाजा गरीब नवाज और बरी इमाम भी यहां तशरीफ लाए थे। क्या ये बुजुर्गाने दीन
यहाँ खुद बनफ्स नफीस तशरीफ लाए थे, या रूहानी तौर पर वो यहाँ आया करते थे, या ये सब महज खुश अकीदगी का शाखसाना है। देखिए, ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इस खित्ते में यानी बर्र सगीर में आना तो साबित है, जाहिर सी बात है आपका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ के अंदर है, और वहीं से लाहौर में हुजूर शेखुल इस्लाम सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो हाजिर हुए हैं, सही तारीख से साबित है, और आज भी उनका चिरागाह मौजूद है जिस पर उलमा की मुस्तनद तहरीरें मौजूद हैं। लेकिन जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, ये जगह तो खुद गैर मुस्तनद है, गैर मारूफ है, गैर सनदी याफ्ता है, तो ये तमाम ख्यालात सिर्फ इसलिए भड़काए जाते हैं ताकि लोगों के लिए वहाँ पर रंग रलियों के लिए एक सबूत एक साबित हो जाए कि ऐसा हुआ था। हालांकि शरीयत मुतहरा के अंदर ना कोई बात साबित है, ना हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर आना साबित है, ना उनके मलफूज के अंदर इस किस्म के खुराफात की। लाहौद की सैर करने वालों को लाहौती कहा जाता है। जब लाहौद के गार से जायरीन वापस निकलते हैं तो मलंग उनकी पीठ पर मोहर लगाता है। और रोटी के टुकड़े, दूध वाले पहाड़ के जर्रात और मंच की राख तोहफे में देता है। इस तरह यहां आने वाले जायरीन का लाहौत मुकम्मल हो जाता है और वो लाहौती कहलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो 7 बार लाहौत कर ले उसका हज हो जाता है। देखिए, हज तो एक फ़र्ज़ है, इस्लाम का रुकन है। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। हज को बैतुल्लाह के साथ लाजिम किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। हज तो बैतुल्लाह के साथ लाजिम व मलजूम है, उसके अलावा हज नहीं। ये सब जाहिलाना बातें हैं। बग़ैर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इल्म नहीं है, ना दुनिया का ना दीन का, तो वो इस किस्म की बातों के ऊपर यकीन रखते हैं जाकर। वहाँ शरीयत से, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक कायदा मरहमत फरमाया कि तुम किसको फॉलो करोगे और कौन तुम्हारे मुक्तदा, जिनकी बातों पर एतमाद तुम करोगे। तो कुरान ने जिक्र किया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो आप नमाज में दुआ करते हैं, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। इनाम याफ्ता बंदे कुरान ने जिक्र किया है वो नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा और सालिहीन हैं। इनसे जो बात आएगी तो इनके मर्तबे और इनके मनसब के एतबार से हम उस बात को कबूल करेंगे, अहले तकवा होने के एतबार से। ये जाहिल, मलंग, फासिक, फाजिर और गोया के गैर शरई उमूर का इर्तिकाब करने वाले, कुरान और सुन्नत का इनकार करने वाले और अल्लाह के दीन के खिलाफ काम करने वाले, ये कतन ताज़ीम के लायक नहीं है। तो चे जाए कि इनकी तरफ से बयान करदा मन गढ़ंत बातों पर यकीन किया जाए। इन तमामों से इज्तिनाब करना चाहिए। और ये कहना कि 70 हज बयान करना, ये सारी खुराफात है। लाहौद के गार के सीधे हाथ की तरफ एक दुश्वार रास्ता जाता है जिससे गुजरकर एक मकाम आता है जहां नमाज के लिए सफ़े बिछी हुई हैं। जब हम इस मकाम पर पहुंचे तो एक अजीब सी खुशबू ने हमें अपने हिसार में खींच लिया। कहा जाता है कि यहां बुजुर्गाने दीन और जिन्नात नमाज अदा करते हैं। कि यहाँ पर मगरिब की अजान के बाद अल्लाह की दूसरी मखलूक सलाम करने के लिए हाजिर होती है, जिनको हम जिन्नात कहते हैं। और उस वक्त अगर कोई इंसान बगैर पूछे यहाँ आ जाता है तो वो अपना नुकसान करके जाता है। तो क्या आपने भी वहाँ पर नमाज अदा की? यानी जो ज़ायरीन जाते हैं, क्या वो खुद नमाज पढ़ते हैं? बुजुर्गान दीन ने अगर नमाज अदा की है तो उनका दीन, वो बुजुर्ग थे इसलिए कि वह अहले तकवा थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर अमल करने वाले थे। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप हमसे मोहब्बत इसलिए करो कि हमारा एक वजूद है। उन्होंने तो कहा हमसे मोहब्बत अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। और यकीनन अगर अल्लाह के लिए आप मोहब्बत कर रहे हैं तो उनके अमल को आप ज़रूर इख्तियार करेंगे जो अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के महबूबों को गोया का पसंद है। वली वो होता है जो शरीयत मुतहरा पर कामिल होता है और उसकी मोहब्बत नफ़ा बख्श होती जब है कि जनाब जब उसके किरदार को अपने कालिब के अंदर ढाला जाए। और इस किस्म की जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं, तो मैंने साबिक़ा गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया, अब भी अर्ज़ करूँ, ये गैर मुस्तनद और फरसूदा बातें हैं। अगर वो नमाज अदा करते हैं और यकीनन वो जिन्नात के बारे में वो नज़र तो नहीं आते, तो अगर वो जगह पाक और साफ़ है और तहारत व पाकीज़गी का पूरा ख्याल रखा गया है तो यकीनन मैं उसको मान सकता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर गंदगी है और कीचड़ है और काई जमी हुई है
اور وہ پتھر جو ہے وہ اس کو 10 لوگ چوم رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ آ کے عطر لگاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پتھر سے خوشبو آتی ہے. تو جب وہ پتھر میں عطر لگایا جائے گا تو خوشبو تو آنی ہے. تو یقیناً یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم خوش عقیدہ ہونے کی بنا پہ بد عقیدے میں کس طرح سے داخل ہو جاتے ہیں یہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. بزرگان دین اگر وہاں موجود ہوتے تو آپ کو نظر آتے. ایسے تو کوئی بزرگان دین موجود نہیں ہے جو نظر نہ آتے ہوں. جہاں تک خوشبو کا تعلق ہے، جب وہاں انہوں نے اس کو لوگوں کے اٹریکشن کے لیے یہ جھوٹی اونٹنی اور جھولا اور غار اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب، تو یقیناً وہ وہاں خوشبو وغیرہ بھی ڈالتے ہوں گے تاکہ لوگ آئیں اور ان کو خوشبو محسوس ہو. اس کی حقیقت تو بغیر دیکھے بغیر جائے نہیں معلوم ہو سکتا. مغرب کی آذان کے بعد لاہور کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کے ملنگ بتاتے ہیں کہ مغرب کے بعد یہاں ان دیکھی مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے اور جو انسان یہاں رات گزارتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس لیے لاہور کرنے والے قافلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے واپسی کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں کی بلندیوں پر سجی اس انوکھی دنیا کے نقوش آنکھوں میں سجائے اس عجائب خانہ حیرت سے نکل جاتے ہیں. اور بلوچستان کے بلند و بالا پہاڑوں پر صدیوں سے آباد یہ انوکھی دنیا آتے جاتے کرداروں سے بے نیاز اپنا اساطیری کھیل جاری رکھتی ہے.